Welcome back, dear listener, to the exciting episode of Campus Buzz Youth Inspiration. I am your host Ankesh Sharma. Thank you so much, guys. आपने हमारे फर्स्ट वीडियो को इतना लव दिया। आपके कमेंट्स इतने मोटिवेटिंग थे कि हमने इस एपिसोड को लाने में कोई देर नहीं की। Today we have a special guest with us, Dr. Kiran Meghani ma'am, Vice Principal of Vedanta College. She is a PhD guide at JGTU, and also she is a visiting faculty at IDOL, Mumbai University, and researcher. So, today in this episode, we will be exploring crucial aspect of every student in the world. It's employability among the students. Thank you, ma'am, for joining us today. Good morning, ma'am. How are you doing today? I'm fine, Ankit. Thank you. I'm very thrilled and excited to be part of Campus Bus podcast. Yes, ma'am. To start, ma'am, could you please tell us a bit about current landscape of employability among the students and what are the key challenges students are facing in today's competitive job world? So, Ankit, let me just brief you about what do I think about the employability skills in youth today. What I have found that students lack in soft skills and also they lack in hard skills. So, whatever degrees and education or graduation they undergo, what I have realized is that just for a theoretical or conceptual part they are getting ready, but industry readiness is not found in youth. So, as a part of Vedanta team or as a part of PAT, we tried very hard to impart such skills in students so that they can be job ready, they can find a suitable career for them by matching their skills with the requirement in the industry. That's a good point, ma'am. Ma'am, can you please tell some strategies and initiatives that colleges and university should take to bridge the gap among the students and enhance their skills in the job market? Yeah, Ankit, this is very good question which you have asked from me because a person like me have been always striving hard to see students to be job ready and to get all the skills which they require in the job market. So, as a faculty or as a researcher or as a you can say vice principal, what I feel is that when we have industry connection with the academics, we can reduce this gap. What is this gap? That is employability gap. Because industry is demanding something else and we are giving them theoretical concepts and knowledge. So what is the need of our that we should have the industry interaction in the campuses so that our students will come to know what kind of peculiarities or what kind of requirements are there in the industry. Be it any degree, be it any graduation, you talk about BAF, you talk about BBI, you talk about BCom, you talk about BMS or you talk about BSc IT as the case is there in the Vedanta College. We should have more industry oriented courses. We should have pre-placement talks by inviting the industry experts. We should have career counseling sessions and we should also inculcate the habit in students to go for internships. So this will in a large way develop the skills in students and this can actually make them industry ready. And apart from that, in a long run, I could say there should be a healthy connections or collaboration between universities and industries around so that we can have some centers which can mushroom around for this particular skill development. So what idea behind this whole concept is that industry is working in isolation, academics are working in isolation, that is universities. We should have a common parameter based courses which will invite the, you can say the industry experts into curriculum and syllabus development and then we can take it forward through universities and faculties. This is the one way and the other ways as I rightly said there are n number of things through which our youths and faculties can approach industries, can start some pre-placement talks and inviting industry experts, giving them industrial visits also having some sort of career placements and career counseling sessions in the academics and thereby we can also offer them internships into the required and specified industry. That's wonderful advice, ma'am. Talking about your role as a PhD guide, मैम आपको क्या लगता है जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनका रिसर्च स्किल्स इस करंट मार्केट सिनेरियो में उन्हें किस तरह से हेल्प करता है टू क्रैक देयर ड्रीम जॉब्स?
Yes, Ankit. Again, this is the question which is need of hour to speak, and we should actually arrive at the unanimous solution together, our we academicians and researchers. मैंने क्या पाया है कि जो स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं या जो लोग रिसर्च करते हैं, उनके जो रिसर्च रिलेटेड स्किल्स हैं वो कुछ अलग अलग चीज़ों में मैं इनको विभाजित करना चाहूँगी, डिवाइड करना चाहूँगी। टू नेम ऑफ यू, एक है एनालिटिकल स्किल्स, दूसरा है सिंथेसिस करने के स्किल्स, तीसरा है इंक्यूसिटिव माइंडसेट, चौथा है आपका डेटा प्रेजेंटेशन, पांचवा है आपका रिपोर्टिंग सेंस, सिक्स्थ है आप लोगों का डेटा सोर्सेज के साथ काम करना और उन्हें बराबर से प्रेजेंट करना, एंड देन देर आर सर्टन हार्ड स्किल्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो मैंने क्या देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास जो एबिलिटी है टू एक्सप्लोर इनटू न्यू वेज और न्यू डोमेन्स ऑफ नॉलेज वो आजकल बहुत कम है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि आप लोग जब ये रिसर्च सीखने जाते हो तो रिसर्च इज़ नॉट टू बी टॉट, इट इज़ टू बी कॉट। तो लोग जाते हैं, अलग अलग स्टैटिस्टिकल पैकेजेस सीख के आते हैं, दे डू SPSS, दे डू जामोवी, दे डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, इवन जो क्लाउड बेस्ड आजकल सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं उन पे भी काम करते हैं। दैट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड डू, बट उसके पहले जो स्किल्स चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं कि एनालाइज करना कि एक न्यू नोवेल टॉपिक कहाँ से आएगा, उसमें से न्यू वेरिएबल्स कैसे बनेंगे, उन न्यू वेरिएबल्स में से एक्सप्लोरेटरी स्टडी कैसे डेवलप होगी, उसमें से हाइपोथेसिस या अजम्पशंस कैसे बनाए जाते हैं, किसी भी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये जो फंडामेंटल्स ऑफ रिसर्च है मैंने देखा है ये स्टूडेंट्स में बहुत कम है। तो मेरा कहने का एक ही कंक्लूजन है, वो ये है कि देर आर वेरियस थिंग्स विच कुड बी टॉट, बट देर आर सर्टन फंडामेंटल्स और बेसिक्स ऑफ रिसर्च जिसको हम लोग कहते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, वो बहुत से लोगों में लैकिंग है। और मैंने ये भी देखा है कि दे कांट एक्सप्लोर देयर यूनिक और नॉवेल वेरिएबल्स इन रिसर्च। सो दिस कैन एक्चुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप if you have more readings, if you have more interaction with the experts who are working in research field, and apart from that अगर आप लोग past researches देखते हो जिन्होंने जिन भी टॉपिक्स पे स्टडी किया है उन्होंने क्या अलग किया और आप क्या अलग रिसर्च गैप की तरफ कंट्रीब्यूट करोगे, तो ये जो स्किल्स हैं ये मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएंगे इफ़ दे टेक दिस रिसर्च स्किल कंबाइन देम विद द मार्केट नॉलेज। देयर इज नथिंग लाइक एनीथिंग इफ अ पर्सन हैज बोथ दीस टू। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट मैम। बेसिकली जैसा आपने बताया जो स्टूडेंट्स में लैक हो रहा है इन स्किल्स के मामले में, मैम एज अ वाइस प्रिंसिपल आप क्या एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को कि वो अपनी इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करें? बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो टीचिंग फैकल्टी होती है उनका ये मेन रोल होता है कि अपने स्टूडेंट्स के स्किल्स डेवलपमेंट में वो क्रूशियल पार्ट प्ले करें। टॉकिंग अबाउट लाइक स्किल्स अबाउट स्टूडेंट्स, मैम प्लीज टेल अस अबाउट what are the most important skills for students to our listener so they can try and improve these skills? अगर मुझे इसका आंसर पढ़ी पढ़ाई बातों से देना है तो मैं ये दे सकती हूँ कि हमें मैनेजमेंट में या फिर कॉमर्स में हमेशा ये सिखाया जाता है कि स्किल्स 3 क्षेत्रों में डिवाइड होते हैं। एक है आप लोगों की कंसेप्चुअल स्किल्स, दूसरे हैं आपके ह्यूमन स्किल्स और तीसरे हैं आपके टेक्निकल स्किल्स। जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी मशीन ऑपरेटर की, ड्राइवर की, एंड फॉर दैट मैटर किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की, कोडर की, तो हमने ये देखा है कि उनमें प्रोग्रामिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। दैट्स व्हाट वी आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर। तो ये हुई बात टेक्निकल स्किल्स की। तो जिस हिसाब का आपका फील्ड है, दे रिक्वायर मोर सॉर्ट ऑफ योर हार्ड स्किल रिलेटिंग टू कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग नॉलेज, so you should be very good in that.
सेकेंडली इफ आई टॉक अबाउट कंसेप्चुअल स्किल्स, तो अगेन जब भी हम लोग कंसेप्चुअल स्किल्स की बात करते हैं तो बिजनेस आइडियाज़ एक्चुअली कहाँ से आते हैं? बिजनेस आइडियाज़ आते हैं कंसेप्ट से। अगर आपके आइडिया फॉर्मेशन, इंक्यूबेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, पॉलिसी मेकिंग में आपके वंडरफुल और इनोवेटिव आप लोग पॉलिसीज़ बनाते हो, तो वो आपके सब कंसेप्चुअल स्किल्स में जाते हैं। तो हमने क्या देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं व्हेन दे form certain ideas, they have creativity and self expression, they can develop something new, they can innovate in the market, तो वो सब चीज़ें आपकी conceptual skills में जाती हैं। थर्ड, अगर मैं बात करूँ ह्यूमन स्किल्स की, जो कि हम लोगों ने देखा है 80% ऑफ पीपल लैक इन ह्यूमन स्किल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पीपल बेस्ड मैनेजमेंट या पीपल रिलेटेड स्किल्स। तो उसमें भी मैंने ये देखा है दैट students find it very hard to mingle with other person. They can't co-work, they can't work with others, they can't even talk to others. So these are certain human skills, and अगर मुझे इसकी बात करनी हो कि ये तीनों skills जो हैं, conceptual skills, technical skill, human skills, किसी एक person में मिले in proper proportion, that is not possible. But as a student we should develop little bit portion of all these skills. Wherever required, we should be able to adapt to the situation, we should apply our concepts and knowledge wherever possible. If it requires hard skills in the form of working on certain software, so we should have technical skills also. And very importantly, when we talk about human skills, you should know how to deal with people. So motivation or emotional intelligence or interpersonal relationship, all these are part of such skills. So नटशेल में मैं बोलना चाहूँगी, स्टूडेंट शुड वर्क ऑन बोथ हार्ड स्किल्स एज वेल एज सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में उनका खुद का प्रेजेंटेशन, सॉफ्ट स्किल्स में उनका खुद का ड्रेसिंग, सॉफ्ट स्किल्स में उनका खुद का कम्युनिकेशन। यस, सो कम्युनिकेशन इज मेजर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल माई स्टूडेंट्स टू वर्क अपॉन। एंड स्ट्रैटेजीज, जैसे अंकित आपने मेरे से पूछी, तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप स्ट्रैटेजीज की बात करते हो तो मैं कहूँगी मोर एंड मोर रीडिंग, more and more writing, more and more speaking, and having some kind of public interaction in every day, journaling, writing down your thoughts, your weak points, your strong points, having your short term and long term goals, watching YouTube tutorials and videos based on how to interact in the interviews, listening to experts, mirror talking, all these will be strategies which I will recommend to my students. Now ma'am, that's the point should be remembered. Ma'am, like from your answer, जैसे आपने कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स होते हैं, मैम ये चीज़ हमने बहुत देखी है। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं अपने कॉलेजेस से, आफ्टर ग्रेजुएट वो अपनी फील्ड में जॉब ढूंढने की जगह दूसरी फील्ड्स पे जाके खुद को जॉब ढूंढते हैं, खुद के लिए जॉब ढूंढते हैं। ये जो प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है कि लाइक पहले तो उन्होंने 3 साल अपने एक अलग फील्ड में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर उसके बाद जब उनको इनफ लाइक जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है उस फील्ड में जब उन्हें नहीं मिलता है, तब वो ग्रेजुएशन के बाद अलग अलग कोर्सेज करते हैं। दैट टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मोरल डाउन हो जाता है जो रिसेंटली ग्रेजुएट होते हैं। और फिर इस पर एक चीज़ और प्रॉब्लम हो जाती है कि बेसिकली वो नए होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं उस फील्ड में, एंड उस फील्ड में जो ऑलरेडी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उनसे हमेशा आगे निकल जाते हैं। तो टफ कंपटीशन बन चुका है ऐसे लोगों में। एक हम इस चीज़ को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक बीकॉम का स्टूडेंट है, नाउ अब उसे उसकी फील्ड में कोई भी एक्सपेक्टेड जो उसने एक्सपेक्ट किया उसे वो जॉब नहीं मिल पा रही है, बट नाउ उसने कुछ कोर्सेज किया, लाइक कोडिंग सीखा, एडिटिंग सीखा, डिज़ाइनिंग सीखा, यूआई डिज़ाइनिंग सीखा। देन फिर जब वो उस फील्ड में जाता है, जैसे आईटी फील्ड में जाता है, डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाता है, तब उसे वो कंपटीशन फेस करना पड़ता है, बिकॉज उसके पहले ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो उस फील्ड में स्टार्टिंग से ही उनका रोल होता है, उन्होंने स्टार्टिंग से उसी चीज़ की तैयारी की रहती है। तब ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि उन्हें उनको ओवरकम करना पड़ता है। ठीक है, सो मैम ऐसा क्यों होता है कि स्टूडेंट्स को परफेक्ट उनका जो करियर पाथ होता है वो चूज़ नहीं कर पाते हैं, फिर बाद में उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि नहीं यार यहाँ पे नहीं हो रहा तो हमें यहाँ करना चाहिए। एंड एक चीज़ और, हमारी जो ऑडियंस है इसमें से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट रोल्स, जो उन्होंने पहले सोचा था बट अब वो नहीं कर पा रहे तो दूसरे रोल्स के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को इस बारे में बताइए
कि लाइक एक परफेक्ट करियर पाथ एज अ फ्रेशर, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अगर मैं कहूँ तो उसे क्या चूज़ करना चाहिए, एंड आफ्टर ग्रेजुएट जब वो उसे उस फील्ड में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तब उसका वो पाथ कैसा होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम ऐसा लगेगा जो उसने फर्स्ट ईयर में जब वो स्टार्टिंग में अपना एक पाथ चूज़ कर रहा था, सेम चीज़ आफ्टर ग्रेजुएशन वही सेम काम कर रहा है। सो मैम आप इसके ऊपर प्लीज़ एक हमारे ऑडियंस को कुछ सजेशंस दीजिए। Ankit, indeed, need of art to actually think that life is precious. One, time is limited. Second, third, it is not at all necessary to get dream job at first instance. Three things. तो उसमें सब लोग, जैसे आप मुझसे बार बार पूछ रहे हो कि करियर पाथ करेक्ट कैसे हो, तो सबसे पहला आपका इसमें ये क्वेश्चन में एक हिडन क्वेश्चन ये था कि लोगों को ड्रीम जॉब जब भी नहीं मिलता है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और अलग अलग जॉब्स करते हैं जिसमें थोड़ा सा वो लोग सर्टिफिकेट कोर्स करके जॉब कर लेते हैं, फिर उन्हें वहाँ के स्टार गॉड्स से कंपटीशन फेस करनी पड़ती है क्योंकि वो ऑलरेडी वो पर्टिकुलर करियर फील्ड में एस्टेब्लिश्ड है और उनके स्किल सेट हमसे ज़्यादा एडवांस है। Truly, this is the scenario which we are observing in our daily lives. मैंने कितने स्टूडेंट्स को देखा है 10, 20, 30 इयर्स के बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि आइडियली उनका स्किल क्या था, और इसमें उनकी भी गलती नहीं है बिकॉज अगर हम लोग देखें हम लोगों का जॉब मार्केट इतना सैचुरेटेड है और हम अगर देखें कि डिमांड एंड सप्लाई रेशो इतना एडवर्स है कि हमने जॉब्स के पॉकेट्स बना लिए हैं। वो पॉकेट्स कैसे बना लिए हैं कि अगर बीकॉम किया तो हम ये चीज़ ही कर सकते हैं, अकाउंटिंग में जा सकते हैं, टैली कोर्स पढ़ सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हायर स्टडीज़ के लिए हम सीए वगैरह के बारे में सोच सकते हैं। अगर हमने बीएमएस किया तो हमारे लिए ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज़ ऑल काइंड ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड हायर स्टडीज़ और वैसे जॉब्स जो हमें एक्चुअली लैंड अप करते हैं इनटू टेली मार्केटिंग। देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो ऐसे केस में मैं खुद भी इसकी विक्टिम रही हूँ बिकॉज आई हैड बीन थ्रू आउट माई लाइफ थिंकिंग अबाउट व्हाट वुड बी माई ड्रीम जॉब देन। सो इसको ये चीज़ को मैं स्टूडेंट्स को एक यहाँ पे गाइडेंस देना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स का ये पीरियड है जिसमें वो अंडर ग्रेड रहते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसमें ये अपना टाइम बहुत ही बखूबी, यहाँ जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइज करें टाइम को। कैसे करें? बिकॉज दो चीज़ें हैं, एक है आपका एप्टीट्यूड और दूसरा है आपका इंटरेस्ट एरिया। जब भी हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट एरिया की, तो इंटरेस्ट एरिया, रुचि हमें किस में है, ये हम जब भी कोई फील्ड में जाके देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि मेरी उसमें रुचि है कि नहीं। ठीक है। दूसरा है आपका एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड क्या होता है? आपका लेटेंट, आपका पोटेंट वो जॉब करने के लिए। तो जैसे से फॉर एग्जांपल ऐसा काफ़ी सारी फिल्मों में भी दिखाया गया है, काफ़ी सारे इंस्टेंसेस भी आते हैं। लोग कहते हैं कि मुझे गाने में रुचि है लेकिन मेरा एप्टीट्यूड गाने जैसा नहीं है, मैं सिंगर नहीं बन सकती। कुछ लोग इसमें भी रिस्क लेते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मेरा क्योंकि इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, म्यूज़िक फील्ड की तरफ चल पड़ते हैं, काफ़ी सारा स्किल डेवलप करके उसमें वहाँ पे टिकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी रियलिटी चेक होता है तो ये मालूम पड़ता है कि क्योंकि वो लेटेंट और पोटेंट नहीं था तो इतने टाइम जो किया वो वेस्ट हो गया, क्योंकि मेरे से ज़्यादा लोग स्किलफुल हैं। ऐसा रियलाइजेशन स्टूडेंट्स को भी होता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया मैंने। तो इसके लिए मैंने कहा कि जो अंडर ग्रेड लेवल है आपका, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इसमें आप लोग अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स ऐसे बना लो, खासकर आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऐसे बना लो कि आपको जितनी चीज़ें इसमें ट्राई आउट करने के लिए मिले, आपको इंटर्नशिप्स करने के लिए मिले, आपको कहीं पे भी लीडरशिप का चांस मिले, आप किसी कमेटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए कोई टीम मेंबर बनते हो, उसको ले लो। भले आपको नहीं आता है, करके देखो, क्योंकि वेरी फर्स्ट सक्सेस आपको तभी मिलेगा जब भी आप कोई चीज़ ट्राई करोगे। तो आप इंटर्नशिप्स ट्राई करो, छोटे मोटे क्रैश कोर्सेज पे जाके देखो, आप लोग थोड़ा सा फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि इसमें मुझे थोड़ा सा स्किल है, किसी से एक्सपर्ट एडवाइस लेके या थोड़ा सा सीख के आप उसको ट्राई करो, देखो उसमें आप
एम्प्लॉयबिलिटी आपको मिलती है कि नहीं, आपको थोड़ा सा सक्सेस, थोड़ा भी बूस्ट मिला ना, अगर आपने अपने दम पे एक चीज़ भी बेची फ्रीलांसिंग में, या आपने कोई बाहर जाके पार्ट टाइम जॉब किया और आपने पैसा कमाया, वो एक किक आएगा आपको, और उससे आप लोग जान लोगे कि ये जो रेम्यूनरेशन मुझे मिल रहा है, क्या मुझे अपना ये मैं ड्रीम जॉब परस्यू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये जो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें करके देखना है विद इन द स्पैन ऑफ दीज 3 years, इट इज़ वेरी नेसेसरी। ये 3 साल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं मिले हैं, ये 3 साल आपको अपनी छुपी हुई कला, जिसे हम लोग बोलते हैं एप्टीट्यूड, जानने के लिए मिलते हैं, आपके इंटरेस्ट एरियाज फेच करने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे केस में जैसे जैसे नई चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस आएगा, वैसे वैसे आपको मालूम पड़ेगा आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर जॉब क्या है, और उस हिसाब से आप अपना करियर फील्ड चूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है, स्टूडेंट्स वेस्ट दीज 3 years, स्टूडेंट वेस्ट दीज 5 years 6 years गोल्डन पीरियड ऑफ देयर, actually I can say trial and error, or you can say experimenting with life. Because देखिए, अगर कोई लॉयर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, या कोई फॉर दैट मैटर कोई प्रोफेशनल फील्ड में जाता है, उसको मालूम है उसे वही करना है, क्योंकि उसने इतना बड़ा स्टेक वहाँ पे लगाया है, 10 15 20 लाख लगाए हैं, उसे मालूम है वही करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको मिसाल दे सकती हूँ कि लोगों ने इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल डिग्रीज करके भी बैकआउट हुए और आर्टिस्ट बने, ये भी मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि हम जैसे लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉम डिक एंड हैरी, जो कि बीकॉम कर रहे हैं, बैफ कर रहे हैं और ऑर्डिनरी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए जो समंदर है बाहर, उसमें निट पिक करना कि मुझे क्या सूट करेगा, वो तभी ही पॉसिबल है जब आप लोग नई चीज़ें ट्राई करो, आप लोग खुद को चांस दो, आप लोग कहीं पे इनिशिएटिव लो, आप लोग बहुत ज़्यादा रीडिंग करो, गूगलिंग करो, आप लोग यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखो, आप लोग आपसे जो बड़े हैं उनसे सलाह लो, आप लोग एक्सपर्ट्स के साथ टॉक करो। और मैं तो कहूँगी सबसे बेस्ट 10th के बाद अपना करियर काउंसलिंग करवा लो। क्यों? क्योंकि आपके काउंसलिंग से, या आपके जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, साइकोमेट्रिक टेस्ट हम उसे कहते हैं, जिसमें हमें मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर क्या कला छुपी है, तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट से, इंटरेस्ट इन्वेंट्री से, पर्सनालिटी रिलेटेड टेस्ट से आपको मालूम पड़ता है कि एक्चुअली आप लोग किस जॉब के लिए बने हो, वही फिर आपका ड्रीम जॉब बने। मैम, क्या आप कोई एक स्टोरी या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे ऑडियंस के साथ, सो दे विल बी रिलेटेड टू यू, कि लाइक जो आपने स्ट्रगल देखा है एंड जो करेंटली हम उस चीज़ को देख रहे हैं, उससे हम रिलेट कर सकें। एंड डेफिनेटली जो आपका जो स्ट्रगल है, जो आपका एक्सपीरियंस है, शायद ये किसी के लिए एक करियर गाइड हो सकता है। तो क्या आप कुछ अपने एक्सपीरियंस या फिर कुछ स्टोरी शेयर करना चाहेंगे हमारे? अंकित, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मुझे लगता है, जितना मैंने अपने आप को जाना है, कि मैंने काफ़ी टाइम लगाया है हर एक चीज़ को एनालाइज करके डिसीजन लेने में। ये मेरा बहुत बड़ा गलती हुआ है करियर में। जैसे मैं स्टूडेंट्स के साथ हमेशा क्लास में भी शेयर करती हूँ कि मैं ऑर्डिनरी बीकॉम ग्रेजुएट थी, उसके बाद मेरे को सिर्फ कोर्स करना था, करके मैंने ई कॉमर्स कोर्स किया। तो ई कॉमर्स में मैंने बहुत सारे पैसे लगाए थे, बस दैट टाइम ई कॉमर्स कोर्स वॉज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, and what I thought that I would be able to make my dream job or career in it, but later on, जैसे आपके पहले वाले क्वेश्चन में था ना अंकित, जिसमें आपने बोला कि हम लोग कर तो लेते हैं कोर्स, लेकिन वहाँ पे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश लोग हैं उनसे हमें काफ़ी कंपटीशन मिलती है। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने देखा BEs MEs के लिए ये कोर्स एक्चुअली था जो ई कॉमर्स, वो एक्चुअली उनके लिए ज़्यादा सूटेबल था। तो मेरा वो बहुत बड़ा गलती कि आई वेंट इनटू IT फील्ड एंड ट्राइड टू merge this particular BCom graduation skills with the programming and coding. Although मेरा ज़्यादा, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ मेरा उसमें ज़्यादा एप्टीट्यूड था भी नहीं। तो ऐसे केस में फिर बाद में डिसीजन लेना, कमिंग बैक टू टीचिंग एंड देन finding suitable job for me. So I've taken a lot of you can say time in order to actually take certain bold decisions for me. So that way I could say that I told you
very beginning only, life is precious, you have only one life, you can't rewind your mistakes also. So that way what my experiences will be, which could be taken, which would be a takeaway for all my students, is that don't waste time. Just try and find out suitable openings for you. This could be always done with the help of experts. This could be done with the help of your internships. This could be done with the help of n number of career related sessions you are going. This could be done with the help of aptitude test also. This could be done with the help of your teachers also. Have a roadmap in your mind. Try to see more and more sort of content relating to the different careers and their prospects in the industry, and then take logical decision, and don't waste time, and always be ready with the you can say 11th hour surprises also, because many a times when you go on job you feel that this is your one time job, you are going to invest in that and you are going to be in that job forever. But that also doesn't happen, because there is always one level above you. So try to maximize your potent, your skill enhancement. Don't wait for anyone, and improvisation every day. Every day improvise, every day do something new. This is one kind of strategy which I would suggest to my youth. Thank you. That's wonderful, ma'am. So thank you so much, ma'am, for joining us today. Your valuable advice for our listener is like, आप वो कुछ भी कर सकते हैं, लाइक जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी जो एक्सपीरियंस है किसी के लिए करियर गाइड हो सकता है. सो डेफिनेटली हमारे जो ऑडियंस है उनमें से कोई ना कोई जरूर आपसे रिलेट करेगा. एंड ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो हमें आपसे सीखना है, समझना है और सुनना भी है बेसिकली. सो थैंक यू सो मच मैम, आप आज आपने हमारे इस पॉडकास्ट में आपने हमें ज्वाइन किया. Thank you, Ankit. I am equally hearty thankful to Campus Buzz podcast for having me today. Thank you. That's the wrap up of this episode. I hope आपने इस एपिसोड को बहुत एंजॉय किया है. इस एपिसोड में हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड जो करंट मार्केट सिनेरियो है, जॉब मार्केट, एंड जो स्टूडेंट्स का जो रियल स्ट्रगल है, हमने इस एपिसोड में कुछ चीज़ों के बारे में सीखा. एक पूरा ओवरऑल जॉब इंटरव्यू से लेकर एक करियर डेवलपमेंट तक इस पूरे करियर पाथ को हमने समझा इस वीडियो में. सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, अपने कमेंट्स में आपका रिव्यू दीजिएगा, ठीक है, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू सो मच गाइस.